Great afternoon, students. How are you? I hope you all are doing very well at your homes and also study very well during this period, because in this time you and we are doing the work of our education through this online medium, right? So we face a number of problems. In spite of these problems, we are doing very well. Also, you are also performing very well in this period. Please keep performing very well and understand all concepts through these videos and your class lectures. And if you have any problem, you can ask the teacher in your classroom through the online classes. So in the last class, we have done all questions of answer briefly. Today we are going to discuss the answer in detail questions. We will discuss question number 1 and question number 2 in this video, and I hope this video will help you to understand this concept of these questions. So let's start our video. So today, students, we are going to start a discussion of our exercise questions which are answer in details. We will discuss firstly in this video question number 1 and question number 2. So here are your exercise questions. Answer in details. Let's start our discussion with question number 1 and question number 2. What is your question number 1? Differentiate between plant and animal fiber. We have to differentiate between plant and animal fiber. यानी कि प्लांट फाइबर में और एनिमल फाइबर में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें फ़र्क होता है, ये हमें बताना है. वी हैव टू टेल दिस. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट फाइबर इज, फर्स्ट वन इज, सबसे पहला है, द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. जो हमें एनिमल से फाइबर मिलते हैं दैट आर कॉल्ड आवर एनिमल फाइबर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर वूल एंड सिल्क. Wool fiber and the silk fiber we get from animals. So these are called animal fibers which we get from animals. Next is our, see, this is our wool fiber. This is our wool fiber. ये हमारा wool fiber होता है. This yarn, this bundle is of our wool fiber. Next is our, this is silk which is also an animal fiber. This is our silk fiber which is also an animal fiber. जो भी क्या है, एक animal fiber है. So these two are example of animal fibers, wool and silk, which we get from the animals. Next is the fibers which we get from plants are called plant fibers. जो fibers हमें क्या है, प्लांट से मिलते हैं, जिनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, that are called our plant fibers. For example is cotton, jute, flax and hemp. These all are the example of plant fibers which we get from the plants, right. Next is, so this is the differentiate. This is the main difference between plant and animal fiber. The plant fibers which we get from plants and the fibers which we get from animals are animal fibers, and their examples like wool and silk are animal fibers, cotton, jute, hemp and flax etc. are our plant fibers. Next question is question number 2. Question number 2 is, how is wool obtained from sheep? We obtained our wool from the sheep. Sheep is the major source of the wool extraction. Sheep is the major source of wool extraction, right. So what are the processes or various steps through which we will extract our wool from the sheep? We will discuss these steps one by one. So let's start. Extraction of wool from sheep includes the following steps. ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एंड वी एक्सट्रैक्ट आवर wool silk, wool fiber.
सो फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. फर्स्ट होता है हमारा शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द फ्लीस ऑफ द sheep इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर स्किन. इसमें क्या होता है? ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें जो शिप की फ्लीस होती है, फ्लीस इज ए हेयरी ग्रोथ. फ्लीस क्या होती है? हेयरी ग्रोथ होती है ये. इट इज हेयरी ग्रोथ ऑन द थिक कोट ऑफ हेयर्स होता है उनके सरफेस के ऊपर, विच इज फ्लीस. ठीक है, तो इसको शेव ऑफ किया जाता है, रिमूव किया जाता है उनकी स्किन से. नाउ सी दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग. दिस मैन इज रिमूविंग द अपर मोस्ट थिक कवरिंग ऑफ हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द शिप. शिप के सरफेस से ये क्या कर रहा है? जो फ्लीस है यानी हेयरी कवरिंग है, इसको रिमूव कर रहा है. रिमूविंग हेयरी कवरिंग, दैट इज फ्लीस. फ्लीस को ये रिमूव कर रहा है. सो दिस इज आवर शेयरिंग प्रोसेस. ये हमारी शेयरिंग प्रोसेस है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप विल बी द स्कोरिंग प्रोसेस. After shearing, we move to the next step, which is our scoring process. In this process, the sheared fleece is washed in machines. जो हमारी sheared fleece होती है, यानी कि जो हमारे hairy growths को क्या किया है? रिमूव किया है शिप के सरफेस से. उस फ्लीश को, उस हेयरी ग्रोथ को हम वॉश करते हैं मशीन्स में टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, ताकि क्या है उस पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव्ड हो सकें. इसीलिए हम उनको वॉश करते हैं पानी में, या तो वाटर टैंक्स में, या फिर मशीन्स की हेल्प से. नाउ सी द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. नाउ सी दिस हॉल इज द, व्हाट इज दिस? ये जो सारा है, ये सारा क्या है? फाइबर है, वूल फाइबर. ये आता है मशीन्स में. इनके अंदर क्या है? पानी है, वाटर है. तो इनकी हेल्प से इनको वॉश किया जाता है कंप्लीटली. सी अगेन, दिस होल फाइबर इज वेंट टू द मशीन्स हैविंग वाटर. जिनमें वाटर है, देन दे वॉश इट. डर्ट पार्टिकल्स हैं जो उसको रिमूव करता है, देन दे आर ड्राइड. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग. This is the whole process of scoring. Now, what is next? After this, after washing the fleece, जो फ्लीस है, हेयरी ग्रोथ है, उसको वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर, जो अलग अलग फाइबर्स की टेक्सचर होती है, जैसे फाइन हेयर्स हैं, सॉफ्ट हेयर्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. दीज आर लॉन्ग हेयर्स, दीज आर शॉर्ट हेयर्स, तो उनको हम शॉर्ट करते हैं. इन दिस प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर. उनकी टेक्सचर के बेसिस के ऊपर कि वो लंबे हैं, छोटे हैं, थिक हैं, कैसे हैं, उनके बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करके हम सेपरेट करते हैं. दिस इज आवर sorting process. After this process, we move to the next process, which is our dyeing process. What is dyeing? Dye करना colors को, that is our dyeing process, right? In this process, the fibers are dyed in desired color. Fibers को हम dye करते हैं अपने desired color में, जो हमें color चाहिए होता है उसमें. क्योंकि हमें ऐसा क्यों करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो या तो वाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, या ग्रे होते हैं कलर में. यानी कि जो फ्लीस होती है, जो फ्लीस हेयरी ग्रोथ है, उनका कलर कैसा होता है? या तो वाइट, या ब्राउन, या फिर ग्रे. तो हमें क्या है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे वूल के हमें जो स्वेटर वगैरह डालते हैं वो हम हर कलर में डालते हैं. तो वो कैसे अवेलेबल होते हैं? उन फाइबर्स को हम डाई करते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो कलर हम उनको देते हैं. देन वी यूज़ देम फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड अदर क्लॉथ्स ऑफ विंटर, राइट? नाउ सी हाउ दीज वूल बंडल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये जो वूल के बंडल्स हैं, ये अलग अलग कलर के आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं. ये सारे रेड है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है. सो दीज ऑल आर डाइड. इनको डाई किया गया है, इनको हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इनको कलर दिया हुआ है. इसके बेसिस पे ही हम डाई करने के बाद ही हम क्या है, अपनी मनपसंद के कलर को चूज़ कर सकते हैं. उस कलर के स्वेटर को, क्लॉथ्स को हम पहन सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इसके बाद होती है कार्डिंग प्रोसेस. कार्डिंग प्रोसेस क्या होती है?
द डाइड फाइबर्स आर देन स्ट्रेटन इन द मशीन्स। अब जो इन फाइबर्स को जिनको हमने डाई किया है, कलर किया है, उनको स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है मशीन्स में डाल के, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कार्डिंग प्रोसेस, कि उन फाइबर्स को स्ट्रेट करना, सीधा करना, बिल्कुल सीधा करना, दैट इज आवर कार्डिंग प्रोसेस। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद होती है स्पिनिंग की प्रोसेस। व्हाट इज स्पिनिंग? wool threads are formed by spinning 3 or 4 strands of wool together। जो वूल का थ्रेड है वो कैसे बनता है? 3-4 जो वूल के स्ट्रैंड होते हैं हम उनको लेते हैं और उनको क्या करते हैं? स्पिन करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रैप करते हैं इकट्ठे, तब जाके हमारा एक वूल का धागा बनता है, थ्रेड बनता है, जो थोड़ा थिकनेस में ज़्यादा होता है इन वूल फाइबर्स के कंपेरिजन में। नाउ सी दैट we use these type of techniques to spin the thread। थ्रेड को स्पिन करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ऐसे रोल करते हैं जैसे आपको इस पे शो किया हुआ है। दिस इज द स्पिनिंग प्रोसेस। इसको हमने क्या किया है? उसके धागे को लपेटा हुआ है, रैप किया हुआ है। सो इसको हम स्पिनिंग से करते हैं, स्पिन करते हैं इसके ऊपर धागे को ऐसे ऐसे। सो दिस इज आवर स्पिनिंग प्रोसेस। इस पर रैप किया जाता है, उसके बाद इसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट इज़ रेडी फॉर आवर वीविंग, जो हमारे क्लॉथ्स की वीविंग के लिए रेडी होता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ वी एक्सट्रैक्ट आवर वूल फाइबर फ्रॉम द शिप। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन गेट वूल फाइबर फ्रॉम द शिप। हम शिप से इजीली इन प्रोसेसेस को फॉलो करके अपना वूल फाइबर गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you a lot to understand these questions of exercise answer in detail part A, which is question number 1 and question number 2. Question number 1 was how we differentiate between plants and animal fibers, and question number 2 was how can we extract our wool fiber from the sheep. So please watch this video and learn these questions through the help of this video. This will help you a lot. Thank you student for listening me, and have a nice day to all of you. Study well. Thank you.